Hello students, myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in History। आज मैं आपको BA पार्ट 3 इतिहास का सिलेबस बताने जा रही हूँ। इतिहास के BA पार्ट 3 में हमारे 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जो है वो है आधुनिक भारत का इतिहास 1761 से 1971 ईस्वी, या इंग्लिश में इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 टू 1971 AD। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। There shall be 2 papers in all in the subject of history, and each paper shall be of 3 hours duration and of 100 marks each. Each paper shall consist of 2 parts. Part 1 shall carry 40 marks and shall consist of 2 compulsory questions. There shall be 20 multiple choice objective type questions of 1 mark each in the first compulsory question consisting of 20 marks. The second compulsory question consisting of 20 marks will comprise of 10 questions of 2 marks each. These will be short answer questions, and answer of each question should be in not more than 20 words. Marks may be deducted if the word limit is exceeded. This part of the question paper will be given maximum 1 hour duration and shall relate to all the 3 sections, covering thereby the entire course. The second part of the question paper shall be divided into 3 sections comprising of 6 essay type questions containing 2 questions from each section of 20 marks each. Candidates will be required to attempt 3 questions, selecting 1 question from each section. This part of the question paper shall be of 60 marks. इतिहास विषय के कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का एवं 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग 40 अंकों का होगा एवं इस भाग में 2 अनिवार्य प्रश्न होंगे। 20 अंकों के प्रथम अनिवार्य प्रश्न में 1-1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 20 अंकों के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न के अंतर्गत 2-2 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। ये सीमित शब्द संख्या वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दिया जा सकता है। निर्धारित शब्द सीमा से अधिक शब्दों में उत्तर देने पर अंक काटे जा सकेंगे। प्रश्न पत्र के प्रथम भाग के लिए अधिकतम 1 घंटे की अवधि दी जाएगी तथा इस भाग के प्रश्न 3 खंडों में विभाजित संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग में पाठ्यक्रम के 3 खंडों में से प्रत्येक से 2-2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 6 निबंधात्मक प्रकृति के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। परीक्षार्थियों को प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न हल करने होंगे। प्रश्न पत्र का यह भाग 60 अंकों का होगा। अब सिलेबस को जो है हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A में जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, मराठा कॉन्फेडरेसी, its strength and weaknesses, clash with the British and decline of the Marathas, expansion and consolidation of the British rule, Bengal, Mysore, Awadh, Sindh and Punjab, subsidiary alliance and doctrine of lapse, establishment of parliamentary control over East India Company,
Regulating Act and Pitt's India Act. Land revenue settlements, permanent Ryotwari and Mehelwari, popular resistance to British rule, and outbreak of 1857 causes, nature and results. Section B will comprise of British policy after 1858, development of British paramountcy, nature of colonial economy, commercialization of agriculture, decline of cottage industries, drain of wealth and India's poverty. Indian Renaissance, its nature and scope, socio-religious reform movements, Brahma Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Indian freedom struggle, the first phase, emergence of Indian nationalism, formation of the Indian National Congress, moderates and extremists, Gokhale and Tilak, economic nationalism, Swadeshi movement, Home Rule movement, and beginning of Muslim communalism and the Muslim League. Section C will have nationalism under Gandhi's leadership, Gandhi's ideology and methods, non-cooperation, civil disobedience and Quit India movements. Other strands in the national movement, revolutionaries, the left, socialists and communists, Subhash Chandra Bose and the Indian National Army, peasants, workers and depressed class movements, women in the national movement, the Government of India Acts of 1909, 1919 and 1935, communal politics and the partition of India, progress and profile of independent India, integration of states, agrarian reforms, the concept of planned economy and industrialization, foreign policy of independent India and non-alignment and Panchsheel. हिंदी में प्रश्न पत्र प्रथम का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास 1761 से 1971 ईस्वी। इसमें भी 3 भाग या 3 खंड हैं। पहला खंड क, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत, मराठा परिसंघ, इसकी शक्ति एवं दुर्बलता, अंग्रेज़ों से संघर्ष एवं मराठों का पतन, ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, बंगाल, मैसूर, अवध, सिंध एवं पंजाब, सहायक संधियां एवं विलय का सिद्धांत, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट, भू राजस्व बंदोबस्त, स्थायी रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी, ब्रिटिश शासन के प्रति जन प्रतिरोध, 1857 का विप्लव, कारण, प्रकृति एवं परिणाम। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेक्शन ए खंड क के हैं। अब दूसरा है खंड ख सेक्शन बी या खंड ख। इसके टॉपिक्स हैं 1858 के बाद ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश सर्वोपरिता का विकास, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप, कृषि का व्यवसायीकरण, कुटीर उद्योगों का पतन, धन का निष्कासन एवं भारत की निर्धनता, भारतीय पुनर्जागरण, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, भारत का स्वाधीनता संग्राम, प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरमपंथी एवं उग्रपंथी, गोखले एवं तिलक, आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय एवं मुस्लिम लीग। सेक्शन सी खंड ग के टॉपिक्स हैं गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, गांधी की विचारधारा एवं पद्धतियाँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो आंदोलन,
राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं क्रांतिकारी, वामपंथी, समाजवादी एवं साम्यवादी, सुभाष चंद्र बोस एवं इंडियन नेशनल आर्मी। कृषकों, मजदूरों एवं दलित वर्गों के आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं। वर्ष 1909, 1919 एवं 1935 के भारत सरकार अधिनियम। सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन। स्वतंत्र भारत की प्रगति एवं परिदृश्य। राज्यों का एकीकरण। कृषि परक सुधार। नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा एवं औद्योगिकीकरण। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति। गुट निरपेक्षता एवं पंचशील। इसके अतिरिक्त रेफरेंस बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उनके भी कुछ नाम दिए हैं मैंने। बॉन्डेज एंड फ्रीडम वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय विश्वेश्वर प्रसाद। इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1987 बाय C.A. Bailey। मॉडर्न इंडिया 1885 to 1947 सुमित सरकार। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म एंड कलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, दिल्ली 1981 बाय बिपिन चंद्र। Next is Peasant Struggle in India by A.R. Desai. Another is Social and Religious Reform Movement in Modern India, New Cambridge History by Kenneth Jones. Next is Social History of Modern India by Ravindra Kumar. And next is Emergence of Indian Nationalism, Cambridge University by Anil Seal. इसी तरह कुछ बुक्स हिंदी की भी हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, लेखक हैं M.S. जैन। नेक्स्ट है आधुनिक भारत 1885 से 1947, लेखक हैं सुमित सरकार। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, लेखक हैं जगन्नाथ प्रसाद मिश्र। फिर है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लेखक हैं बिपिन चंद्र। और नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, लेखक हैं R.L. शुक्ल। इसके अतिरिक्त भी आप अपने पसंद की किताबें या पुस्तकें देख सकते हैं। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिनका मैंने नाम बताया है।